environment. He serves as a lead examiner for Yoga Certification Board and has presided over 150 examinations. For his unwavering dedication and profound contribution, he has been bestowed with the prestigious Yoga Ratna Award. Thane School of Yoga has conducted more than 66 online YCB examinations. U Plus Yoga was founded by Mrs. Monali Soni ma'am. She embodies the fusion of traditional wisdom and modern expertise, holding various certifications from Yoga Certification Board to a course from New York University in Yoga and Physiology. She brings a holistic understanding of both spiritual and scientific dimensions of yoga. Through her dynamic online platform, she extends the healing touch of yoga to diverse communities. Both the prestigious institutes, Thane School of Yoga and U Plus Yoga, jointly conduct YCB online theory and practical examinations. They are approached to conduct online examination by other institutes time over time. Other than examinations, they also conduct online classes for all YCB levels and are also involved in conducting various events like the Yog Sambodh to enhance and spread the yogic knowledge. We thank them for this great opportunity. Now it's time to introduce our guest speaker for today. It is an honor to introduce our esteemed guest speaker for today, your Guru Nitin Patki sir. As we embark on this journey of enlightenment and holistic living, it is only fitting that we are joined by someone who embodies the essence of excellence and innovation in this ancient art. A visionary leader whose journey is marked by a profound dedication to both the spiritual and academic realms. Armed with a BTech from the prestigious IIT Madras and a Master's in Management Studies from JBIMS, he brings a unique blend of technical expertise and managerial acumen to the world of yoga. But it is not merely in the realm of academia and leadership that he excels. With a postgraduate diploma in yogic sciences, a yoga master, and a yoga therapist, he has delved deep into the heart of yoga, mastering its intricacies and unlocking its transformative power. His expertise extends beyond personal practice, as evidenced by his role as an examiner and yoga expert appointed by Ayush, where he plays a pivotal role in shaping the future of yoga education and regulation. Moreover, he embodies innovation and vision, having developed cutting edge CRM software tailored specifically for yoga schools, streamlining operations and student experience. As the CEO of the New Age Yoga Institute, he serves as a beacon of knowledge and inspiration. Please join me in extending a warm welcome to our esteemed guest, whose wisdom and insight will enrich our minds and nourish our souls. We welcome you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Chaudhary. Thank you, Vijay Madekar sir, the Yoga Sambodh platform, and Thane School of Yoga, and all the teachers and associates of Thane School of Yoga. I have been associated with Dr. Vijay Madekar and Thane School of Yoga, and has associated in a different way as a friend, as a school for whom he's been examiner for countless number of times, and at an academic platform at many occasions on many festivals. So I thank him for this, giving me this opportunity and privilege to speak on this prestigious Yoga Sambodh platform. I wish him the best for taking this platform ahead for this International Day of Yoga, as well as the future endeavors. I have with me our principal and founder, Sandhya Patki ji, जिनके आशीर्वाद से मैं ये संस्कार भेदन का लेक्चर 1 आवर क्लास जो है वो आपके साथ करने वाला हूँ. संध्या मैडम, प्लीज ज्वाइन मी. Namo Namah, everyone. Yes, Namo Namah. Welcome to our online channel. Namaskar. Namo Namah. So today's subject is Sanskar Bhedan.
थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करूंगा। आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी। आई होप हिंदी एंड इंग्लिश इज कंफर्टेबल फॉर ऑल, सबके लिए ठीक है। तो आप लोग सब संस्कार भेदन ये टर्म शायद पहिली बार सुन रहे हैं। सर मी मागच्या वेळेला शेअर स्क्रीन केलं तेव्हा बंद झालं, तर आय एम जस्ट ट्राईंग अगेन ना. नाही नाही, को होस्ट केलेलं आहे, तुम्ही करू शकता. आणि ओके, रेकॉर्डिंग पण तुम्हीच करा. या रेकॉर्डिंग केलेलं आहे. सो आय हॅव स्टार्टेड द रेकॉर्डिंग. So, have you heard of this term called संस्कार भेदन, which is deprogramming of mind? इसके बारे में अगर आपने सुना हो तो, अगर किसी ने सुना है तो मुझे थोड़ा सा आप बता सकते हैं, किसी ने भी सुना हो तो. न्यू एज योगा टीचर्स भी है इसके अंदर, इस ग्रुप में. किसी ने शायद कोर्स भी, वर्कशॉप भी किया हो. तो संस्कार भेदन, दिस इज अ न्यू टर्म and it's a completely new application of Patanjali Yoga Sutra. And I think we should start with the background or with the introduction of what exactly is Sanskar Vedan. Is my slide visible to everyone? Okay. So as you are aware, the Patanjali Yoga Sutra was written 2200 years ago by Rishi Patanjali, with the highest objective of creating a roadmap for reaching the state of Kaivalya. पतंजल योग सूत्र के कितने स्टूडेंट्स हैं हम लोग यहाँ पर? थोड़ा सा हाथ ऊपर करें. सारे लोग हैं? सब लोग हैं? और जिनको ऑलरेडी कैवल्य मिल गया है वो भी थोड़ा सा हाथ ऊपर करें. चलो चलो करो. कैवल्य जिनको मिल गया है वो, अरे वाह, पारुल इज ऑलरेडी रिसीव्ड द डिग्री ऑफ कैवल्य. मिल गया? नहीं मिले? किसी को भी नहीं? सर वी आर पोटेंशियल कैंडिडेट्स. पोटेंशियल कैंडिडेट्स कोर्स में एनरोलमेंट किया हुआ है और अभी राह देख रहे हैं कब मिलेगा ना. सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैवल्य. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैवल्य? लेट मी सी दैट. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? क्या बात है, तृप्ति, बिलकश जी, सुनीता जी, जया. नो वन इज इंटरेस्टेड लुक्स लाइक. तो बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से को अभी. अच्छा, one sir is interested. I am not able to see his name, but very encouraging and heartening to know that there are some people who are interested. Anjani Bhakta is interested. Okay, great. So that's a good response. But आज का कॉमन मैन जो है ना, जो आप नहीं है, आपके बाहर है, जो आप कॉमन थोड़ी, आप तो सब लोग बहुत स्पेशल है इस सेशन में आए हैं तो. लेकिन आज का कॉमन जो मैन है उसको आप जाके पूछो, क्या भाई आपको कैवल्य चाहिए, भेज दूं मैं, कुरियर से भेज दूं या व्हाट्सएप से भेज दूं, तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है. सर थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ, ये ब्लैक स्ट्रिप आ रही है साइड में, राइट साइड में और ऊपर में थोड़ा सा. अभी ठीक है? ओके ओके, थैंक यू. तो Patanjali's Kaivalya is very valuable, but common man doesn't understand. He is not interested in Kaivalya, but the techniques which are mentioned in Patanjali Yoga Sutra are applicable to conquer the midway obstacles. जो बीच में अपनो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको दूर करने के लिए पतंजलि के टेक्निक्स जो है वो बहुत काम में आते हैं. So the right application of these techniques, if it is done, common man can obtain, if not liberation fully, but liberation from his day-to-day problems, mostly related to the mind. क्योंकि पतंजलि योग सूत्र राजयोग जो है वो इट्स अ टेक्निक टू कंट्रोल द माइंड. सो संस्कार भेदन ये ऐसा ही एक एप्लीकेशन है जो बहुत सालों के पतंजलि योग सूत्र के स्टडी से, अब मेरा, संध्या मैडम का और हमारे जो टीचर्स का मिलके बहुत सारे साल, बट इंडिविजुअली एटलीस्ट 15 years ऑफ स्टडी ऑफ पतंजलि योग सूत्र के बाद में ये जो डिवाइस टेक्निक जो है वो बनाया गया है. और संस्कार भेदन इस एप्लीकेशन के ऊपर भी काफी इन डेप्थ स्टडी और चिंतन करके ये जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ संस्कार भेदन है वो बनाया गया है.
तो it has been tried and tested on several individuals through workshops as well as one-on-one counseling sessions. So I would like to unfold this concept of संस्कार वेदन, लेकिन इसके पहले मैं एक थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है आज हम लोग 1 घंटे में जो करने वाले हैं वो एक्चुअली एक 5 से 6 घंटे का वर्कशॉप होता है जहां पे पार्टिसिपेशन होता है। तो आज के इस लेक्चर में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 घंटे में हमको करना है, लेकिन आपको संस्कार भेदन क्या है वो जरूर समझेगा, उसका एप्लीकेशन क्या है वो भी आपको समझेगा, और जो एडवांस स्टूडेंट्स है वो शायद इसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो है, इसके पीछे की टर्मिनोलॉजी, क्या वर्ड्स यूज करते हैं, एटिमोलॉजी क्या है, वो हमको समझना पड़ेगा। तो संस्कार वेदन में जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं वो एक तो सबसे पहले संस्कार। तो संस्कार क्या होता है? संस्कार इज एन इम्प्रेशन विच इज लेफ्ट ऑन चित्त। चित्त का डेफिनेशन मुझे आपको देने की जरूरत नहीं, सारे योग के स्टूडेंट्स हैं। विजय सर, आई अज्यूम। तो चित्त के ऊपर जो इम्प्रेशन which is caused due to every action, speech and intent is called as sanskar. It is like a program. Okay? तो जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी एक्शन हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग सोचते हैं, उससे जो इम्प्रेशन हमारे चित्त के ऊपर बनता है उसको संस्कार कहते हैं। तो संस्कार 2 प्रकार के हैं। एक तो वर्चुअस संस्कार विच इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ गुड सेल्फलेस एक्शंस, एंड विशियस संस्कार जो एक शुभ है और एक अशुभ है। जो विशियस संस्कार है वो सेल्फिश विशियस एक्शंस। तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई मैं तो सेल्फिश एक्शन करता ही नहीं हूँ और इस कैटेगरी में मैं नहीं आता हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि हम सारे लोग जो है वो सेल्फिश एक्शन करते ही है। एक बार के खाना खाने में भी हम लोग ने थोड़ा कुछ आगे ज्यादा खा लिया, कुछ जो आवडीचा पदार्थ जास्ती खाल्ला तर इट बिकम्स अ संस्कार। ओके, तो इतना वो सटल चीज है। और इस संस्कार के साथ साथ उसका एक जोड़ी आता है, जोड़ीदार आता है, वो है वासना। हम लोग डे टू डे लैंग्वेज में भी इसकी बात करते हैं। तो वासना इज व्हाट? तो वासना इज अ बिहेवियरल टेंडेंसी, इट्स एन एक्सपेक्टेशन और लॉन्गिंग। आप इस लेक्चर में जो आए हैं वो भी एक वासना के साथ आए हैं कि इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि इसके पहले के जो विजय सर ने लेक्चर दिए थे उसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो एक आप एक्सपेक्टेशन से आए हैं, एक लॉन्गिंग से आए हैं, तो ये एक शुभ वासना है। ओके, तो जैसी शुभ वासना टू गेट समथिंग पॉजिटिव, वैसे एक अशुभ वासना भी होती है, एक विशियस वासना भी होती है कि लॉन्गिंग टू डू अ विशियस और सेल्फिश एक्शन। मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट, इस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में अशुभ वासना के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अशुभ वासना तो बहुत सारी होती है, क्योंकि वासना ये वर्ड ही अशुभ वासना के साथ में कनेक्टेड है। अशुभ वासना कौन सी होती है? किसी चीज को ज्यादा खाने की इच्छा, ज्यादा सोने की इच्छा, कुछ फिल्म देखने की इच्छा, बिंज वॉचिंग की इच्छा, व्हाट्सएप बार बार देखने की इच्छा, ये सारी जो है ये विशियस वासना, निगेटिव वासना, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये वासना जो है ये सिर्फ इस जन्म की नहीं है, ये वासना बिगिनिंगलेस, यानी कि हमारे इस जन्म के पहले के जन्म के पहले के जन्म के, मतलब इट्स एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ वासनास विच आर ट्रांसमाइग्रेटिंग अक्रॉस पास्ट एंड सब्सिक्वेंट लाइव्स विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। तो क्या आपको पिछले जन्म की कोई मेमोरी है? अगर किसी को है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। पिछले जन्म में आप क्या थे और आपकी क्या क्या रिजर्वायर ऑफ कर्मा और वासना क्या थे, वो आपको याद है? नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। तो लेकिन आपके चित्त में उस मेमोरी का इंप्रेशन है। और अगर आप मुझे देखते हैं और पिछले जन्म में अपनी मुलाकात अगर हुई हो तो ये मेमोरी कनेक्शन जो है आपको आपके कॉन्शियस एक्शन के बगैर, विदाउट योर कॉन्शियस एक्शन ऑल्सो इट विल गेट कनेक्टेड। इसीलिए आपको लगता है कि मैंने ये रूपा देसाई को कहीं ना कहीं देखा है। मैंने देखा तो नहीं, इस जन्म में नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कोई पिछले जन्म का कनेक्शन। ओके,
तो ये हो जाता है। इसलिए कभी कभी लगता है हमको, मैंने इसको कहीं देखा है, कुछ तो इसके साथ में एक अच्छी मेमोरी है, या हो सकता है कोई बुरी मेमोरी हो। ओके, तो दिस मेमोरी में बी नॉट ऑफ दिस लाइफ, बट कुड बी ऑफ द अर्लियर लाइफ, और अर्लियर उसके पहले की लाइफ की भी ये मेमोरी, स्मृति हो सकती है। और इस स्मृति के साथ कनेक्टेड एक वासना भी हो सकती है। हर विषय, विषय मतलब क्या, जो हम लोग बाहर की दुनिया में हमारे सेंसेस से कनेक्ट होते हैं, जिस चीजों से कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं विषय। और हर विषय के साथ में कुछ न कुछ मेमोरी और कुछ न कुछ वासना जरूर कनेक्टेड होती है। ओके, और उस न वासना से कनेक्टेड होने के बाद अगर आप किसी एक्शन की तरफ पुल होते हैं, मतलब आप बेबस हो जाते हैं कि मैं, कभी कभी होता है ना, बेबस ये अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन मैं हो सकता हूँ पुल, एक एक पुल होता है आपको कि चलो इनके साथ कुछ बात करते हैं, चलो ये खा के देखते हैं, अरे ये नहीं खाना है ना, मेरी बच्ची है वो दूधी की भाजी खाती नहीं है, तो उसको अभी कभी खाया भी नहीं है उसने, लेकिन वो देख के ही बोलते हैं नहीं खाना है। कभी कभी इसके ऐसा ऐसा हो जाता है ना कभी, कि देख के ही लगता है कि नहीं 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 खाना नहीं, हमने इस बार इस जन्म में कभी देखा भी नहीं, उसको खाया भी नहीं है, लेकिन एक अपने को ये एक टेंडेंसी होती है, और उस एक्शन में या उस इनएक्शन में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब इस वासना भरे एक्शन से हम लोग एक एक्शन करते हैं, तो वो हो जाता है कर्म। तो आप सोचेंगे कि नहीं, मैं आज सुबह से मैंने कोई कर्म किया नहीं है, क्योंकि कोई वासना नहीं थी, बहुत मेरा काम कर रहा था, मैं अपने आप जो जो प्रॉपर डिसिप्लिन में था मैं वो हो रहा था। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप जो भी करते हैं, जो भी बात करते हैं, वो कुछ ना कुछ आपके प्लेजर्स, आपके पेन्स के साथ कनेक्टेड होता है, इसीलिए वो कर्म में जरूर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये अपना जो है वो टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट जो है टर्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको जानना जरूरी है। बहुत लोग इसको जानते हैं, और ज्यादा मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप में से योगा टीचर या योगा स्टूडेंट्स कितने लोग हैं, कितने लोग योगा स्टूडेंट्स नहीं हैं और क्लेश के बारे में नहीं जानते? अगर ये मुझे जानकारी हो जाए तो मैं डिटेल, कितना डिटेल में जाना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। क्लेशों के बारे में जो जानते नहीं हैं वो थोड़ा सा हाथ ऊपर करें। तो मैं अज्यूम करता हूं कि सारे लोग क्लेश के बारे में जानते हैं, सारे ही लोग क्लेश के बारे में जानते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी कंटिन्यूटी के लिए मैं इस कंसेप्ट को फिर एक बार थोड़ा सा आपको समझाता हूं। तो व्हाट आर क्लेशर्स? क्लेशर्स आर अफ्लिक्शंस। अफ्लिक्शन भी शायद अपने को समझ में नहीं आए, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड। क्लेशर मतलब रॉन्ग और कॉन्ट्ररी नॉलेज। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, गलत नॉलेज नहीं बोल रहा हूं, कॉन्ट्ररी, विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान जो क्या करता है, हमें एक आउटवर्ड फोर्स तैयार करता है हमारे अंदर, जो हमको बाहर की दुनिया में खींचते चले लेके जाता है, हमें बाहर की दुनिया में विषयों में उलझाता है। वो एक फोर्स है। तो ये क्लेश किस वजह से होता है? आपको पता है, सबसे उसको मदर ऑफ क्लेश बोलते हैं, वो अविद्या है। जो अपना सूत्र है उसके अकॉर्डिंग, मैं सूत्र नहीं समझा रहा हूं क्योंकि उतना समय नहीं है अपने पास, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि टू कंसिडर व्हाट इज इम्परमानेंट एज परमानेंट, टू कंसिडर व्हाट इज इम्प्योर एज प्योर, टू कंसिडर व्हाट इज पेनफुल एज प्लेजरसम। हमको पेनफुल ये समझा सकता हूं मैं, हम लोग लड्डू खाए हैं, 4-5 खाए हैं, अच्छा लगा इसलिए और 2 खाए हैं, तो हमको तो अच्छा लगा, तो ये प्लेजर लगा, लेकिन यही प्लेजर पेन में कन्वर्ट होने वाला है, वही आपका पेन बनने वाला है। तो कंसिडर व्हाट इज पेनफुल एज प्लेजरसम एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ एज सेल्फ। तो ये है बेसिक मदर क्लेश, और इस मदर क्लेश के वजह से आपका अस्मिता जो है क्लेश वो जाग जाता है। अस्मिता मतलब जब आपको, आप अपने स्वरूप से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है कि परमानेंट क्या है, प्योर क्या है, पेनफुल क्या है, प्लेजर क्या है, और सेल्फ क्या है। तो आप सेल्फ से कनेक्टेड, कनेक्शन टूट के आपका जो है
वो चित्त वो और जगह पे लग जाता है, आप कनेक्टेड हो जाते हैं। अस्मिता मतलब आप एज्यूम करते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी ये बॉडी है, मेरा परिवार है, मैं इसका पिता हूँ या तो इसका हस्बैंड हूँ, मैं इसकी वाइफ हूँ, इसकी मदर हूँ। ये रोल्स, ये अस्मिताएं हम अज्यूम कर लेते हैं। ये गलत अस्मिता नहीं है, लेकिन इस अस्मिता के साथ इस अस्मिता से सब ऊपर भी हमारी जो अस्मिता है वो हम लोग भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब जानबूझ के भूल जाते हैं, कोई पाप नहीं है। ये अपना जो डिजाइन है, वो ह्यूमन डिजाइन है, वो इसी तरह का डिजाइन है कि हम भूलने की डिजाइन से ही बने हैं। तो लेकिन इस भूलने की वजह से, एक अस्मिता की वजह से क्या होता है, तो हर एक अस्मिता का कोई राग और कोई देश द्वेष रहता है। अगर मैं माता हूँ, मदर हूँ, तो मुझे मेरे बच्चों से प्यार है। मेरा बच्चा जो भी करता है वो मुझे प्लेजर देता है। अगर मेरी बच्ची ने कुछ भी गलत किया तो उससे मुझे पेन होता है। तो राग और द्वेष ये दोनों साथ साथ आते हैं, एक ही सिक्के के दो कॉइन, दो साइड्स है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और सबसे आखिर में डिजायर ऑफ कंटिन्यूटी। मेरा परिवार है, चलता रहे, कोई भी ना मरे, मैं भी ना मरूं। फियर ऑफ डेथ, जो मेरा घर है वैसे ही चलते रहे, मेरे गाड़ी है, मेरे प्रॉपर्टी है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो जो है वो कंटिन्यूटी इसकी चलती रहे। तो ये जो हमने नेटवर्क बनाया है अपने लाइफ का, वो टूटे ना और कहीं मुझे डेथ ना आ जाए, ये डर, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। और ये सारे क्लेश जो है, इनके 4 स्टेजेस या 4, मैंने आपको बोला कि क्लेश फोर्स है, तो वो फोर्स का कुछ ना कुछ एक मेजर होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए ये फोर्स का मेजर है। मेजर मतलब कितना उसमें जोर कितना है, फोर्स कितना है। तो प्रसुप्त जो है वो सबसे कम है, मतलब जो हिडन है और हमारे लाइफ टाइम में कभी हमने उसको देखा नहीं है, उतना वो कभी आता नहीं। मतलब ऐसा क्लेश जो हमने हमारे जीवन में देखा नहीं है। तनु क्लेश मतलब जो वीक है। जैसे अभी अभी आपको कोई इच्छा हो जाए, अभी आपको इच्छा हो कि मैं अपने फ्रेंड से बात करूं। एक सिंपल सा उदाहरण, हर बार खाने का उदाहरण नहीं लेता हूं, जैसे आप बोलते हैं इसके खाने के अलावा उनको सोचता नहीं, तो मैं अपने फ्रेंड को मुझे फोन करना है, ऐसी मुझे इच्छा हो जाती है। लेकिन अभी क्या है, अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है, आप मेरे सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो आप वो नहीं करेंगे। ये इच्छा जो है वो तुरंत आपकी डाई डाउन, मर जाएगी, और आगे आपको ये इच्छा शायद हो भी नहीं। तो ये एक तनु क्लेश, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो विच्छिन्न क्लेश है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फोर्स अभी आप उसको एक्शन में नहीं ला सकते, क्योंकि नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। आपके फ्रिज में आइसक्रीम पड़ा है, फिर से मैं खाने के ऊपर आ गया हूँ। तो आपके फ्रिज में आइसक्रीम पड़ा है, लेकिन और वक्त भी ऐसा है, अभी इतना गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी के टाइम लाया था और आपको याद आ गया मैंने बोला, तो आपको लगता है कि मैं उठ के खाऊं जाके आइसक्रीम खाऊं। लेकिन कैसा लगेगा, मुझे स्क्रीन बंद करना पड़ेगा, सर मेरे पास देख रहे हैं, हाँ, कल्पना मुस्कुरा रही है, उसका फ्रिज में पड़ा हुआ है, शिल्पा भी मुस्कुरा रही है। तो अभी वो सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। तो 3 बजे जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, तब तुरंत उठ के वो जाएंगे और खाएंगे। यानी क्या, उसको उसने तब तक दबाए रखा, जब चांस मिल गया वो ऑटोमेटिकली जाके उसने वो एक्शन में आ गए। वो विच्छिन्न क्लेश है। और उदार क्लेश है मतलब क्या, जो इसने अभी वीडियो बंद करके रखा है और व्हाट्सएप देख रहा है, कोई जोक देख रहा है, कोई ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है, दूसरा कुछ देखते हैं, ऐसा करके, अगर मुझे ऐसा पता नहीं अगर कोई करता हो, लेकिन ऐसा कोई करता है तो उदार है। ये क्लेश उदार है ना, उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी है, वीडियो भी बंद है, कोई देखता नहीं है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया। तो 4 लेवल के क्लेश है। अब चलो हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड देखते हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं और जाते जाते आपके सामने क्या आ जाता है,
वड़ा पाव। अभी शाम का लेक्चर नहीं है, लेकिन शाम का अगर लेक्चर होता तो उसमें बहुत सारा क्लेश जागृत हो जाता था। अभी आप खाना वाना खा के बैठे तो नहीं होगा शायद शायद, लेकिन फिर भी किसी के मुंह में पानी डेफिनेटली आ गया ये वड़ा पाव देख के। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक वासना जुड़ी है, एक मेमोरी जुड़ी है पिछली बार, और पिछली इतनी बार आपने जब वड़ा पाव खाया था तो आपको इतना बढ़िया लगा था वो, उसका जो प्लेजर है वो आपके मेमोरी में तुरंत कनेक्ट हो गया। और अभी आपका जो क्लेश उससे जुड़ा है, ये राग जो है वो उदार है। उदार मतलब उसका जो उसकी मात्रा जो है, उसके पीछे का फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। एनवायरनमेंट भी कंडीसिव है। तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप जाएंगे, मेनू देखेंगे कौन सा ऐप पे, स्विगी पे, और पास में जो भी वड़ा पाव वाला है उसका देखेंगे कौन सा वड़ा पाव आपको अच्छा लगता है, 2 वड़ा पाव मंगा लिए और खा लिया, कर्म कर लिया। अब कर्म करने से आपकी वासना और भी स्ट्रांग हो गई, और भी संस्कार खाने के जो है वो स्ट्रांग हो गए, और इस तरह से ये साइकिल है वो चलता रहा। तो जो वासना है वो भी स्ट्रांग हो गई और संस्कार है वो भी स्ट्रांग हो गए। इस तरह से इस वासना और संस्कार की जो का जाल जो है, इसमें हम लोग फंसते जा रहे हैं, लेकिन हमको कोई उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि इससे हमारा डे टू डे लाइफ कोई बिगड़ता नहीं है। हाँ, एक आध बार खाने से, वड़ा पाव खाने से थोड़ा वजन बढ़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा पेट बिगड़ गया, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। तो इन सब दुखों से हम लोग वाकिफ है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन अब जब हम लोग संस्कार भेदन की बात करते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होना चाहिए? अगर पतंजलि योग सूत्र हमने पढ़ा है तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। वड़ा पाव तो वैसे ही रहने वाला है आपके जीवन में, वड़ा पाव तो ऐसे ही आने वाला है, बहुत सारे वड़ा पाव आने वाले हैं। तो विषय तो है ही अपनी जगह पे, मेमोरी भी है। पिछली बार आपने खाया था, उसकी टेस्ट से आपके मेमोरी भी जागृत हो गई, वासना भी अपनी जगह पे है। लेकिन जो आपका राग है वो अब उदार नहीं है, तनु है। यानी कि अभी की परिस्थिति जैसी है वैसी आप उसको अपने विल पावर से क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रेन एंड कनेक्ट से आप उस इच्छा को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम एक्शन। इसके पीछे है क्या? आपकी बुद्धि, आपका विवेक, विल पावर। तो उसके विल पावर लगा के आपने इसको, ये एक्शन, इसका साइकिल जो है वो तोड़ दिया, और अभी के लिए आपने आपकी वासना जो कम कर दी, ऑटोमेटिकली वासना थोड़ा कम हो गया। नेक्स्ट टाइम वड़ा पाव आएगा सामने तो वासना और भी कम होगी, थोड़ा संस्कार और भी फ्री रहेगा। ओके, रूपा देसाई को बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम्पल। ओके, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत मेरे ख्याल से वड़ा पाव का। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हमारे लाइफ में ऐसे कितने वड़ा पाव हैं। Excuse me, sir. यस, Sir, I'm sorry to disturb. मुझे Please इसलिए go हंसी आई because my maid is also sitting with me and listening. बहुत अच्छा, उसको भी अच्छा तो लगेगा। उसको मुझे इसलिए हंसी आई कि वो he is so happy. He हाँ, immediately said कि मैं आता कधीच वडापाव आणि खाल्ला समोसा नाही। खाणार नाही. नहीं नहीं, खाओ खाओ, मैंने मना नहीं किया। जब भी समय हो तभी खाओ। और आप अभी उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आपके लाइफ में कितने वड़ा पाव हैं? मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपको तकलीफ दे रही हैं, जो आपको दुख दे रही हैं? और मैं आपको गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों बताता हूँ। ऐसी बैड न्यूज ये है कि अनगिनत चीजें हैं, सुबह से लेकर रात तक अनगिनत चीजें हैं जो आपको तकलीफ देती हैं और आपको नीचे खींच रही हैं, कैवल्य से बहुत दूर 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 जा रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है तो आपको इसकी तकलीफ नहीं, आपको उसका ज्ञान नहीं है, आपका लाइफ फ्लो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। इस मेंढक की तरह, जो मेंढक बीकर में रहता है उसको आप पानी में रखो और धीरे धीरे पानी को स्लो आंच में गर्म करते रहो,
तो बहुत देर तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एंजॉय कर रहा है और बहुत देर वो अपना पानी गर्म होते रहा हो रहा है। एक बार वो उबल जाता है पानी, तब प्रॉब्लम क्या होती है कि मेंढक उछलने की स्थिति में रहता नहीं है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो मर जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यही होने वाला है, लेकिन ऐसा ही अपने साथ होता है। एक दिन ऐसा पता चलता है कि ये अपनी आदत इतनी अपने साथ जुड़ गई है कि हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो ऐसी आदतों की अगर आप लिस्ट बनाए तो बहुत सारी आदतें होती। तो मैं इस अपने वर्कशॉप में ये सारी आदतों को लेता हूँ। नॉर्मली एक से लोगों को टाइम देता हूँ कि जो अपने यहाँ से एक्चुअली प्रैक्टिकल जो है वो संस्कार वेदन शुरू होता है, लेकिन अभी हम लोग में नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है। लेकिन जो कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूँ कि पतंजलि ने साधन पाद में जब अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस किया तो उसके साथ साथ पहले दो जो पिलर्स है उसको अंग जो है उनको समझाया, वो है यम और नियम। सबको पता है यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम में आता है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और पतंजलि ने इसके साथ जो आपको सिद्धि मिलती है, विभूति मिलती है, वो भी बताए हैं। अहिंसा के साथ में सानिध्य, वैर त्याग, सत्य के साथ में क्रिया फल श्रेयत्व, अस्तेय के साथ सर्वरत्न सर्वरत्न उपस्थानम, ब्रह्मचर्य के साथ वीर्य लाभ, परिग्रह के साथ जन्म कथा कंठांत संबोधन। मतलब ये टेक्निकल वर्ड्स है, लेकिन पतंजलि ने ये बोला कि आपको बहुत सारा कुछ मिल सकता है अगर अब इसका पालन करेंगे एज अ महाव्रत। लेकिन हम उससे दूर हैं, क्योंकि हमारे हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। अहिंसा होती नहीं है और हमारे क्लेशों की वजह से हिंसा हो जाती है, असत्य हो जाता है, स्तेय हम करते हैं। ब्रह्मचर्य का विपरीत जो है आसक्ति, हमें बहुत सारी चीजों से है। अपरिग्रह नहीं, परिग्रह है हमारा। हमारी अलमारी खोल के देखेंगे तो परिग्रह का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। वैसे ही नियमों के बारे में। तो ये जो राइट साइड में है ये हो गए हमारे वितर्क, जो हमको हमारे गोल से दूर लेके जा रहे हैं, और इसका कारण है क्लेश। ओके, तो संस्कार ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कैवल्य तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, लेकिन हम लोग एक छोटी छोटी आदतें हैं। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे अपनी छोटी छोटी आदतें, तो उसका लिस्ट कैसा हो सकता है, क्या उसके छाया कैसी, छवि कैसी हो सकती है। आई एम फॉरगेटफुल, मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ, मैं बाहर जाने के पहले कभी भी अपना मेकअप किए बिना बाहर नहीं जा सकता हूँ, आधा घंटा मेकअप करता हूँ। ओके, और मैं बहुत निगोशिएट करता हूँ, या मैं अमुक खाने से मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सारे अपने वितर्क हैं। ऐसे हमारे वर्कशॉप में हम लोग 80 से 100 वितर्क डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जब वितर्क हमें पता चले तो ये सारे वितर्कों के ऊपर तुरंत एक साथ काम नहीं हो सकता है। इसको हम लोग एक एक करके उसको काम करना पड़ेगा, और एक क्यों हमने काम किया, उसको सक्सेस मिला, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम लोग आगे चलते हैं। तो वर्कशॉप में क्या करते हैं, या तो संस्कार वेदन का जो प्रोसेस है वो क्या है। संस्कार वेदन में पहले तो हम लोग इन वितर्कों के बारे में अवेयरनेस जो है वो बढ़ाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो अपने आप से पूछते हैं हम लोग। तो अगर आपके मन में कुछ वितर्क आ जाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं आर्गुमेंटेटिव हूँ, मैं फॉरगेटफुल हूँ, मुझे जजमेंट किया जाए तो मैं डरता हूँ, मैं किसी व्यक्ति से डरता हूँ, या कुछ भी हो सकता है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे चिंता में बहुत करता हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो 6 क्वेश्चन है जिससे इन चीजों का अवेयरनेस हम लोग पहले बढ़ाते हैं। तो हाउ ऑफन डज इट हैपन विथ यू, कितनी बार होता है, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, हर रोज 10 बार। तो हाउ आर यू डीलिंग विद द सिचुएशन करेंटली, जब ये होता है तब आप क्या करते हैं, या आप तुरंत इंडल्जेंस कर जाते हैं उस एक्शन में या इनएक्शन में। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, ये एक्शन या नॉन एक्शन सही नहीं है, ये स्पीच या साइलेंस या अवेयरनेस ये सही नहीं है, तो इसके पीछे
रीजन क्या है, यानी कि इसके पीछे की आपकी वैल्यूज क्या है। अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं हर रोज लेट उठता हूँ, ओके, तो कितनी बार होता है, हर रोज होता है, तो क्या आप उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करता हूं, मैं स्नूज करता हूं, अलार्म बंद करता हूं और 10 मिनट सो जाता हूं। तो आपको क्या लगता है कि ये बुरा क्यों है, उसके पीछे की आपकी वैल्यू क्या है। तो हो सकता है आपकी वैल्यू हो कि सुबह जल्दी उठने से मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, मेरा काम टाइम पे हो जाएगा, मेरा ये मैं अचीव करूंगा, ये आपकी वैल्यूज है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हार्म इज दिस एक्शन कॉजिंग टू यू, इसकी वजह से आपको नुकसान क्या होता है। हाँ, मैं ज्यादा देर तक सोता हूँ तो मुझे आलस आ जाता है, मेरे काम रुक जाते हैं, मेरा मोटापा बढ़ता है, ये अनेक जो आपके हार्म्स जो है वो आपके मन में आ सकते हैं। वाई डू यू गेट कैरिड अवे बाय द सिचुएशन एंड डू और डोंट डू इट, मतलब जब आपको पता है कि इससे हार्म होने वाला है, जब आपको पता है कि ये मेरी वैल्यू है और मुझे नहीं करना है, फिर भी आप इसमें इंडल्ज क्यों करते हैं। तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेजर है या कोई पेन है जो आप दूर करना चाह रहे हैं। अब यार प्लेजर क्या होगा, और अच्छा, और 10 मिनट सोने में जो आनंद है वो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, और थोड़ा 10 मिनट सोने के आनंद है, तो ये प्लेजर जो है इसको हमको ऊपर लाना है, ये मेरा प्लेजर है। ओके, आर यू रेडी टू डील विद दिस इश्यू विद द हेल्प ऑफ संस्कार भेदन टेक्निक, क्या आप तैयार है इसका सोल्यूशन लेने के लिए। ये पूरे संस्कार भेदन के कंसेप्ट का सबसे नाजुक और सबसे हेल्प, सबसे आई वुड से डिफिकल्ट स्टेप है, नाजुक और डिफिकल्ट। क्योंकि क्या आप चाहते हैं, रियली चाहते हैं कि ये जो जो वितर्क है वो आपके जीवन से बाहर निकल जाए। क्या आप विजुअलाइज कर सकते हैं, क्या आप, अगर हम लोग सोने का ही उदाहरण लें, क्या आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ के आपका मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका आसन कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं अपने आप के बारे में कि आपको यही कंटिन्यू रखना है। अगर ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो ये आपकी पहली विक्ट्री है, सबसे पहली विक्ट्री है के वितर्क की। इसके बाद में आपका प्रवास शुरू हो जाता है। क्या प्रवास है, सबसे पहले इसमें कोई भी चीज जो है संस्कार भेदन में अपने मन से नहीं है, सारा पतंजलि ने बताया। सो पतंजलि ऋषि ने क्या बताया है कि अपने क्लेश को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्रिया योग। क्रिया योग से समाधि कारण है और क्लेश तनुकरण भी है। तो अपने को इंटरेस्ट क्या है, लेट्स गो बैक टू अवर दिस स्लाइड। अपने को ये जो उदार क्लेश है उसको, कहाँ गया, तनु तनु करना है, छोटा करना है। तो वो तनु करने के लिए हमको कोई सोल्यूशन है क्या। हाँ है, पतंजलि ने दिया है। क्या है, क्रिया योग है। क्रिया योग में क्या आता है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप क्या होता है, तप मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेटरी स्टर्डी प्रैक्टिसेस एट बॉडी स्पीच एंड माइंड लेवल। तो वर्कशॉप में हम लोग तप के बारे में और बहुत बात करते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तप का है कि ऐसे एक्शन में आप लगो जिसमें जो आपको प्लेजर से दूर रखे और आपको पेन दे। तो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो ऋषि हैं, जो साधु हैं, वो एक पैर के ऊपर खड़े रहेंगे, अग्नि के ऊपर चलेंगे, उससे पेन है, उसमें पेन है, लेकिन वो जानबूझ के वो करते हैं। लेकिन उससे कोई पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मतलब अपने शरीर में ऐसे कोई इरिवर्सिबल चेंज नहीं होना चाहिए जिससे आपको हानि हो। तो ऐसा तप, आप सोचेंगे कि मैं तो आसन करती हूँ, नहीं, आसन ये तप नहीं है। आसन का उद्देश्य क्या है, और आसन का जो प्रोसेस है, पतंजलि ने क्या बोला है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। इसमें प्रयत्न की जरूरत नहीं है, वो जब होता है तब आसन है। आसन उस तरह से आप जगह जब करेंगे जब जो आपको पेन दे, जो आपको प्लेजर से दूर रखे, तो वो आसन तप हो जाएगा। यानी कि आपको जानबूझ के आपके शरीर को ताप देना है, आपके शरीर को प्लेजर से दूर रखना है। मौन, उपवास, ये सारे तप है। ओके, प्राणायाम, प्राणायाम में आप जब बाह्य कुंभक करते हैं, अंतर कुंभक करते हैं, लंबे समय के लिए करते हैं, तो वो एक तप है।
तो तप क्यों करना चाहिए? क्योंकि तप से अपने पास एक औजार तैयार हो जाता है, एक थॉर्न तैयार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यास भाष्य की टिप्पणी है। एक औजार तैयार हो जाता है जिस औजार से आप आपके लाइफ के जो अलग अलग जो थॉर्न्स है, जो कांटे हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। तो आपने एक कांटा चुना है, उसको निकालने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। कौन सा तप, वो डिटेल वाली बातें हैं। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में क्या होता है? एक स्टडी ऑफ सेल्फ। हमने देखा है ना कि क्लेश में हम लोग स्वरूप से दूर जाते हैं, तो स्वरूप के पास आने के लिए ये स्वाध्याय, स्व का अध्याय। तो एक सिंपल अध्याय, सिंपल जो स्वाध्याय का जो एक्सरसाइज है वो ओम चैंटिंग है, वो जो वन पॉइंटेडनेस डेवलप करता है। तो 11 बार ओम चैंटिंग, वो एक स्वाध्याय का सिंपल एक्सरसाइज। और तीसरी चीज है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब हम लोग जब ओम यानी कि प्रणव करके हमारे स्व से जुड़ जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं, तब उस सेल्फ को हमको प्रणिधान करना है, यानी सरेंडर करना है। सरेंडर ऑल एक्शंस टू गॉड। ये सरेंडर की भावना जब निर्माण होती है, जब इसके लिए हम लोग ने कुछ प्रेयर्स हैं, वो प्रेयर्स हम लोग करते हैं। तो इसका इंटेंशन क्या है कि हम हमारे जो अस्मिता है उससे दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है? क्लेश तनुकरण। क्लेश का जो तनुकरण मतलब उसका रिजल्ट जो है वो कम हो जाता है अपने आप। जब क्लेश का तनुकरण हो जाएगा तो क्या होगा? क्लेश तनुकरण करेंगे तो क्या होगा? वापस हम लोग वड़ा पाव में जाते हैं। क्लेश तनुकरण हो गया, कनेक्ट एंड रिस्ट्रेंट, फ्री फ्रॉम एक्शन, ये उसका नतीजा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्लेश, अब क्रिया योग कब करना है? क्रिया योग रेगुलर अभ्यास है। ऐसा नहीं कि आपको अभी आपको अभी जल्दी उठना है, स्नूज कर रहे हैं आप अपने अलार्म को, तो तभी आपको क्रिया योग करना है। नहीं नहीं नहीं, तभी क्रिया योग नहीं हो सकता है। तब at the spur of the moment you cannot do kriya yoga. That time there is something else which you have to do, but kriya yoga has to be done as a regular practice. Okay, it is like this. आप जब प्यासे हैं तब आप कुआं खोदेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, आपको पहले कुआं खोद के रखना है, पानी तैयार रखना है, सो दैट जब आप प्यासे हैं तब आप तुरंत पानी पी सकते हैं। तो क्रिया योग इज लाइक डिगिंग अ वेल एंड क्रिएटिंग अ रिजर्वायर ऑफ वाटर। और जब आप रिजर्वायर ऑफ वाटर तैयार रखेंगे तब आपको जब चाहे तब आप पानी पी सकते हैं, अपने प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। ओके, so this is Kriya Yoga. So Kriya Yoga is your regular exercise in Kriya Sanskar Vedan. It has to be done every day. It takes 15 to 20 minutes, but that's a regular exercise. Next हम लोग आ जाते हैं at the spur of the moment, यानी कि आपने देखा, आपको वितर्क, मतलब वितर्क क्या है? जो यम नियम के ऑपोजिट है वो वितर्क है। तो उस वितर्क को आपको अगर हैंडल करना है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो पतंजलि ने क्या बोला है? पतंजलि ने बोला है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। So Patanjali is suggesting the technique of Pratipaksha Bhavanam for reversing the direction of Vitarka towards non-Vitarka. Okay? So बहुत लोग कहते हैं कि वितर्क मतलब, मैं थोड़ा सा भी एक इंटरेक्शन करता हूँ, थोड़ा हम लोग अच्छे टाइम पे है, 10 मिनट में अपना हो जाएगा, तो 2-3 मिनट का टाइम है। क्या आपको क्या लगता है, जो लोग ऑलरेडी वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं, आपको क्या लगता है जब आप उदास हो जाते हैं, कोई आपको या आप कभी गुस्सा हो जाता है? उदास कम बार होते हैं, गुस्सा आप ज्यादा बोल रहे, तो जब आप गुस्सा हो जाते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर ऑब्वियसली, तो तभी आप क्या करते हैं? तभी आपको, अगर समझो ये वितर्क है, उसको हैंडल करना है, तो आपके हिसाब से वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना में क्या करना चाहिए? सब लोग पंडित बैठे हैं यहाँ पे क्लेश के, बोलो शांत रहना चाहिए सर।
क्या करना चाहिए भाव्या? शांत रहना चाहिए। शांत शांत रहना चाहिए। पूछो पूछो, दीप्ति को पूछो, शांत रहते क्या वो? पॉसिबल है? जब गुस्सा आ गया, जया, गुस्सा आ जाता है तो क्या करते हैं अनुपम को? सर अभी तो स्विच ओवर सीखा है। सीख लिया sir, तुमने। just हाँ, connect लेकिन your स्विच mind with your breath. ओवर क्या है आपका, स्विच ओवर क्या है वो पूछ रहे हैं। हाँ, Connect your कैसे mind with कैसे your करते हैं आप? breath. गुस्सा को कम कैसे करते हैं? जी Connect your mind with the breath. कनेक्ट योर माइंड टू Breath. ब्रेथ। ब्रीथ, वेरी गुड, सांसों के वेरी साथ, नाइस, सांसों के वेरी साथ नाइस। पूछो। कांति भाई बहुत अच्छे योग स्टूडेंट है और वो जानते हैं टेक्निक, ऑलरेडी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जानते हैं। I am applying it day to day in day to day routine. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बिल्कुल पकड़ा है, मेरा मेरा जो है ना पंक्चर कर दिया पूरा सीक्रेट। नहीं, जया का सुनते हैं ना, जया क्या कर रहे हैं आप? जा, छाया क्या बोल रही है? सर जब भी गुस्सा आता है तो पहले तो मैं रास्ता चेंज कर लेती थी, क्या थोड़ा करते माहौल हैं? रास्ता चेंज कर यहाँ लेते। रास्ता थोड़ा, चेंज कर लेते हैं? हाँ, अच्छा। यहाँ आगे पीछे हो जाते थे, दूसरे रूम में चले जाते थे। अरे लेकिन लेकिन अभी गुस्सा हस्बैंड नहीं, चलो आता भाई है, के ऊपर गुस्सा आ गया तो अभी गुस्सा आता है तो उसी टाइम अपने ध्यान में आँख बंद कर थोड़ा श्वास ऊपर लेती हूँ, छोड़ती हूँ ध्यान से, तो तुरंत वापस मन भी शांत हो जाता है और गुस्सा भी शांत हो जाता वेरी है। गुड। तो बस हमारे एक से नहीं हमारे करती। लोग जो है यहाँ पे, ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी जो एक्सपर्ट बैठे हैं, संस्कार वेदन भी ऑलरेडी जानते हैं और मेरे ख्याल से उनको जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग टेक्निकली देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली वर्क करता है। पतंजलि ने क्या बोला है? पतंजलि ने वितर्क बांधने, प्रतिपक्ष भावना के लिए कोई टेक्निक दी है क्या? तो पतंजलि ने डायरेक्टली कोई टेक्निक दी नहीं है, लेकिन अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पतंजलि ने एक टेक्निक बोली है और वो है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। ये है एक तत्व अभ्यास। एक तत्व अभ्यास मतलब क्या? जैसे कांति भाई ने बोला है कि टू गो इनवर्ड्स, दैट मीन्स मूव द, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वितर्क फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वितर्क से नॉन वितर्क यानी स्वरूप के तरफ जाना। लेकिन ये बहुत टेक्निकल लगता है, वितर्क से नॉन वितर्क तक जाना। गुस्सा आ गए तो प्यार की भावना मन में जागृत करो। अरे भाई नहीं आएगा प्रेम की, जब भी आप गुस्से में हैं तभी प्रेम की भावना नहीं आ सकती है, ट्राई करके देखो। जब भी आप डरे हुए हैं तो कॉन्फिडेंस की भावना जागृत करो, वितर्क बाद नहीं होगा, नहीं हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? पतंजलि ने ही बोला है, हमको उसमें से कुछ अर्थ निकालना है, एक तत्व अभ्यास, और उसमें क्या बोला है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, एंड दिस इज अवर संस्कार भेदन स्विच। तो इस स्विच में क्या है? टू ब्रीथ डीप ब्रेथ एंड स्लो ब्रेथ आउट, प्रच्छर्दन, exhalation, slow exhalation, and hold your breath out, बाह्य कुंभक करो थोड़ी देर के लिए। This is the संस्कार भेदन switch. At the spur of the moment, this will work. Why it will work? I will tell you. Not I will tell you. व्यास भाष्य has told you. He has already written in व्यास भाष्य में कि ये क्यों काम करेगा। क्योंकि जब आप प्रश्वास करते हैं तो प्रश्वास में you are kind of releasing your identity, you are releasing your senses, your connection with the body, your attachment with the body. आप करके देखो, जब पेन होता है तभी आप ब्रीदिंग आउट करेंगे तो पेन कम हो जाता है। सो प्रच्छर्दन करना, और उसके आगे जाके व्यास भाष्य में जो पतंजलि ने नहीं बोला है लेकिन जो उसमें गर्भित अर्थ है वो कि प्रच्छन्न करने के बाद आपको बाह्य कुंभक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने आपके सेल्फ को, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको सरेंडर किया है, आपके सेंसेस को सरेंडर किया है। आपका जो ईश्वर प्रणिधान का जो प्रेयर है ना, वो उसमें ये सब लिखा है कि आप रिलीज कर रहे हैं सारा कुछ। एंड देन जब आप बाह्य कुंभक करेंगे तब आपके अंदर का जो ट्रू सेल्फ है, रियल सेल्फ है, दैट विल बी रियलाइज्ड इन द वैक्यूम ऑफ बाह्य कुंभक।
This is the crux of संस्कार भेदन, एंड दिस इज हाउ, जब वो आपके अंदर का ट्रू सेल्फ रियलाइज हो जाएगा, दैट इज द मोमेंट when the direction of vitarka will change, and that is the moment when you will switch over from anger to peace, from hatred to love, from addiction to brahmacharya, from falsehood to satya, from हिंसा टू अहिंसा। और ये जो टेक्निक है वो कोई भी वितर्क हो, किसी भी वितर्क में ये काम करता है, प्रोवाइडेड व्हाट, प्रोवाइडेड यू हैव डन दिस, प्रोवाइडेड आपके कुएं में पानी है। अगर आपके कुएं में पानी ही नहीं है और आपने आज से ही शुरू कर दिया वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना संस्कार भेदन बाय प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुआं खाली है, कुएं में पानी ही नहीं है। ओके, सो संस्कार भेदन इज क्रिया योग एंड एकतत्व अभ्यास ऑफ प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। ओके, एंड इफ यू डू दिस, आई एम कमिंग बैक टू द ओल्ड स्लाइड ऑफ वड़ा पाव, दिस इज योर फेवरेट स्लाइड। आप कनेक्ट एंड रिस्ट्रेन विल पावर, आपकी विल पावर डेवलप हो सकती है। अल्टीमेटली इट इज योर बुद्धि विच इज गोइंग टू गिव यू द विवेक ऑफ मूविंग फ्रॉम रॉन्ग टू राइट, फ्रॉम हार्मफुल टू हेल्पफुल। ओके, एंड देन दैट इज द ओनली वे यू कैन गेट फ्री फ्रॉम एक्शन। ऐसे आप एक एक करके सारे जो वितर्क है उसको आप हैंडल करेंगे, तब आप आगे जाके कभी थोड़ा सा ड्रीम कर सकते हैं कैवल्य के बारे में। लेकिन मैं आपको एक बताता हूं कि अभी मैं स्लाइड्स खत्म कर लेता हूं, आखिरी 5 मिनट, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये आप नहीं करेंगे। ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है, और सीक्रेट जान के भी आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सब उस मेंढक की तरह हैं जो बीकर में गर्म पानी में कंफर्टेबल हो गए हैं। पानी उबलेगा तभी देखा जाएगा। तो हमारे कारपेट के नीचे हमने सारे वितर्कों को छुपा के रखा है। तो मेरे वर्कशॉप में मैं ये हमेशा करता हूं कि आप एक प्रॉब्लम लेके आएंगे वर्कशॉप की शुरुआत में, आपके मन में एक प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप जब वर्कशॉप छोड़ के जाएंगे तब आपके पास 100 प्रॉब्लम होंगे। तो फिर क्यों करना है भाई? एक प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और 100 प्रॉब्लम अगर होने वाले हैं तो ये क्यों करना चाहिए? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपके पास अब एक वेपन, एक औजार है जिससे आप लड़ सकते हैं उन वितर्कों के साथ। अब तक जब तक आपके पास ये औजार नहीं था तब आपने सारे प्रॉब्लम को छुपा के रखा था, और जब आपके पास औजार आएगा तब कारपेट खोलेंगे, एक एक प्रॉब्लम लेंगे, उसके ऊपर आप काम करेंगे, क्योंकि आपको अभी स्ट्रेंथ मिल गई है उसके ऊपर काम करने की। So that is Sanskar Vedan in short, in 1 hour for you. Yes. Questions open for next 3 minutes. क्वेश्चन करने से पहले आपका नंबर और वर्कशॉप कब होगा, कभी होगा, इसके बारे में आप चैट क्या बॉक्स मैं में इसको- डाल दो, मतलब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैं अभी आपको नंबर यहाँ पे डाल दो। ओके, डाल देता अभी हूँ, किसी का क्वेश्चन है? so that I can send them more information later on. यस यस, शैलेश लोहावटी, गंगवानी, रामदास जी, मनमोहन जी, विकास सर, नहीं। ओके, मनमोहन जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो। ओके, So can रामदास I जी। ask? Sure, yeah, yes. यस यस। So sir, we have understood there are impressions already in our chitta. After doing Kriya Yoga, then again we are working on it. तो क्या होता है? वासना, राइट? अब वासना हुई और मैंने क्रिया किया, क्रिया करने के बाद वापस वो इम्प्रेशन एक बना विच इज कॉल्ड संस्कार, Correct. बिकॉज हर क्रिया के बाद फिर संस्कार होगा, उसका Correct. इम्प्रेशन बनेगा। सो Correct. व्हाट वाज दैट?
ये हम लोग बात कर रहे हैं, व्यास भाष्य में भी ये लिखा है कि जैसे अशुभ वासना है, जैसे नेगेटिव वासना है, वैसे शुभ वासना भी है, पॉजिटिव वासना है, दोनों पैरेलली चल रही हैं। जितने आपकी पॉजिटिव वासना आप बढ़ाएंगे, उतने आपके नेगेटिव वासना के ऊपर काम होगा। ओके, बहुत आगे जाके जब आप कैवल्य के पास में आएंगे, तभी आपको ये शुभ वासना भी आपको दूर करनी है, लेकिन तब तक आपको इस सत्व को बढ़ाना ही है। जब सत्व बढ़ेगा, शुभ वासना बढ़ेगी, तभी आपके नेगेटिव वासना कमी होगी। तब तक तो डेफिनेटली हम लोग सारे लोग जो है वो शुभ वासना को बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। सो इट इज नॉट एक्चुअली डीप्रोग्रामिंग, इट इज रीप्रोग्रामिंग, लेकिन दैट इज मच बेटर देन हैविंग अ रॉन्ग प्रोग्राम। तो तब तक अपने को ये शुभ वासना चलते करते रहे। जया, जया, इसका एक रेफरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि योग वशिष्ठ में ज्ञान भूमिका बताई है। जैसे आप बोल रहे कि शुभ संस्कार, शुभ एक विचार आपके अंदर आएगा जो शुभेच्छा करके है। उसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते सत्वापत्ति, सत्व बढ़ेगा, और सत्व बढ़ेगा, उसी को आपको एनहांस करके एक ही विचार को लेके आपको आगे जाना है। और आपका जो विचार रहेगा, वो विचार जो है वो कैवल्य के लिए रहेगा, निर्वाण के लिए, एज पर द योग वशिष्ठ निर्वाण, और एज पर द पतंजलि कैवल्य। तो आपको कैवल्य मिल जाएगा। और अभी मिल गया है क्या? नहीं मिला है। नहीं, कैवल्य की भी इच्छा रहेगी, कैवल्य की भी वासना रहेगी, वो आगे जाके वो भी आपको छोड़नी है तो ही मिल सकता है। Yes, whatever you are using the vehicle, you have to leave that vehicle also. लेकिन उसका विचार अभी नहीं करो, अभी अपने कारपेट के अंदर जो 1000 चीजें छुपाई है, उसको, उसके ऊपर विचार करो। Yes. अभी जो ऑब्स्ट्रक्शन Sir, के ऊपर विचार करेंगे। sir, Thank you. even like if we do karam, which is nishkam, then it does not create करेक्ट, यू anything, आर right? राइट, यू आर राइट। निष्काम कर्म, निष्काम पतंजलि ने कर्म बोला से है कि योगी लोग जो कर्म करते हैं, वो ना तो व्हाइट है, ना तो ब्लैक है, ना तो एक मिक्स ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा निरीक्षण करेंगे अपने कर्मों के ऊपर, हम लोग उससे कहीं दूर है अभी, क्योंकि Okay, उसके मनीषा, वहां तक हम लोग पहुंच गए तो बहुत बहुत पा लिया हमने, वहां तक पहुंच गए तो बहुत पा लिया। ठीक है, मनीषा पंचाल। हाँ, मनीषा बोल। सर, हाँ जी सर, मैं ये बताना, वही जो अभी कर्माशय के कर्म के बारे में बताया, तो मैं भी जो हमारा तपस स्वाध्याय, तो मैं स्वाध्याय के बारे में सिर्फ ओम चैंटिंग और जो हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, कर्माशय के बारे में जानते हैं। तो अभी ये जो गुस्से वाली बात है, कभी हमें लगता है कि मुझे इनजस्टिस हुआ है, तो जिनको ये कर्म और कर्माशय के बारे में जानकारी है, तो वो इजीली लेट गो हो सकते हैं, सरेंडर हो सकते हैं, और वितर्क को दूर कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, वही वही चीज है। नॉलेज इज द सोल्यूशन, अल्टीमेटली सोल्यूशन फॉर ऑल, लेकिन नॉलेज हैज टू बी सक्सीडेड बाय एक्शन। पतंजलि ने शुरुआत में एटलीस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि एक्शन डिपेंड्स ऑन नॉलेज। ये मतलब सत्कार्यवाद है, ये सांख्य के ऊपर डिपेंड है। विदाउट कॉज देयर कैन नॉट बी इफेक्ट। सो नॉलेज, व्हेन द नॉलेज इज कॉज, ऑटोमेटिकली गुड इफेक्ट विल कम, गुड एक्शंस विल कम। नॉलेज जरूरी है सर। ये नॉलेज यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन के साथ अवेयरनेस है, राइट ना? अवेयरनेस। हाँ, नॉलेज हम लोग जब बोलते हैं, तभी हम लोग जो समझते हैं नॉलेज, वो साइंटिफिक नॉलेज, वो अलग बात है। और यहाँ पे नॉलेज मतलब ज्ञान, मतलब अपने खुद के बारे में जो ज्ञान है, उसका ज्ञान। चलो, Okay, thank you Thank very you much. so much. I hope you have taken my number. Please contact yes. if you are interested in doing the workshop. Workshop is normally done in the last week of the month. So Saturday, Sunday, इस बार का जो workshop होगा वो 29th और 30th June, 29th 30th June को। Normally the timings are 29 को हम लोग 3 o'clock to 6 o'clock in the afternoon, 3 PM to 6 PM। संडे को हम लोग करते हैं 4 to 6 PM, और बाद में एक फॉलो अप सेशन होता है अगले संडे को 1 hour का। ऐसे वो 6 hours का सेशन है। अगर मुझे विजय सर परमिशन दे तो मैं उसके चार्जेस भी बताऊंगा, अरे अदरवाइज नहीं नहीं, बताइए ना, परमिशन हाँ। क्या है सर, आपका ही है प्लेटफॉर्म, आप बताइए प्लीज। नहीं, मुझे ये प्रमोशन क्लास नहीं करना है, इसके बारे में मुझे नहीं, जानकारी रिक्वेस्ट है, देनी ये प्रमोशन नहीं है। दिस इज योग, वी आर So this, टुगेदर, वी आर गोइंग thank टुवर्ड्स you योग। so much. This Thank is you so much, sir. So please. this workshop, the cost of workshop is very nominal. It is rupees 1000 only.
and till now many people have taken benefit of this thing. तो 29-30 को होगा. इसके बारे में जानकारी, पूरी जानकारी आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको दे दूंगा. थैंक यू सो मच. Okay, thank you very much Vijay sir. Thank you again. न्यू एज योगा को सही में थैंक यू सो मच, जो हमारे लिए संस्कार भेदन, संस्कार कम करने के लिए ये वर्कशॉप आपने इनिशिएटिव लिया है. मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर ये संस्कार भेदन का वर्कशॉप अटेंड करें. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन नितिन जी एंड योर टीम ऑल्सो एंड संध्या जी ऑल्सो. Thank you Vijay ji. Thank you Yoga Sambodh and Thane Thank School you. of Yoga. Thank you. And thank you Thank everyone for attending and listening patiently. Thank you. Namo Namah. नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः. चलो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ. नमो Thank you. नमः नमो सर. नमः. नमो नमः.